Hello guys, welcome back to the Dream High Academy. As you all of know that this is a lecture series as per the new syllabus scheme issued by JKSSB for the post of Jammu and Kashmir Police Sub Inspector. So we are here discussing quantitative aptitude. This is the lecture 8 of quantitative aptitude series. Let us begin today's lecture with a quote that is: success is the sum of small efforts repeated day in, day out. So, let us begin our lecture. Our lecture today is about the topic, a new topic: speed, distance, and time. This will be the part 1 of this topic. Firstly, let us define what actually speed is. Actually, speed, distance, and time are the three quantities which are related to each other. How they are related to each other? Speed is defined as, or for any object or a body, speed is the distance covered by the body per unit time. That means speed is distance by time. और यू कैन सिंपली से दैट इन ए यूनिट टाइम, यानी कि टाइम आप 1 सेकेंड रखो, 1 आवर रखो, या 1 मिनट रखो, 1 दिन रखो, 1 साल रखो, यानी कि टाइम को एक यूनिट में रखना है. तो फिर एक टाइम यूनिट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, दैट वी डिफाइन इट एज अ स्पीड. एंड स्पीड का जो यूनिट है जिसमें हम मेजर करते हैं, स्पीड इज़ मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर. मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर, दीज आर जनरल यूनिट्स. तो कुछ और भी यूनिट हो सकते हैं, बट मेनली स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में देते हैं. और अगर कोई और यूनिट दिया है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. सी, लेट अस सपोज स्पीड इज गिवन एज x किलोमीटर पर आवर, or sometimes it is given as at x meter per second speed. How we can convert meter per second, kilometer per hour to meter per second? Actually, what we will do, x kilometer can be replaced by 1000 meter divided by, in 1 hour we can have 3600 seconds, you know. So if we simplify them, this will be x into 5 by 18. So if you have speed in kilometer per hour, you multiply it by 5 by 18, it will be converted to meter per second. Similarly, if we have meter per second speed, we can convert it into kilometer per hour by multiplying by 18 by 5, and it will be converted to किलोमीटर पर आवर. सो ये दो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है. किलोमीटर पर आवर को अगर हमने कन्वर्ट करना है तो 5/8 से मल्टीपल करके वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगा. एंड सिमिलरली मीटर पर सेकंड में दिया हो तो हम इसको 8/5 से मल्टीपल करके किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, हमें जो स्पीड दी है, हमें दी है स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 18 किलोमीटर पर आवर. If we have to convert into meter per second, this 18 is to be multiplied by 5 by 18. Kilometer per hour will get converted to meter per second. This 18 will go cancel. This is equal to 5 meter per second. That means 18 kilometer per hour means 5 meter per second. Similarly, if you have to convert this back, if you have speed of 5 meter per second, you want to convert into kilometer per hour, then we multiply it by 18 by 5. So it will become in kilometer per hour. 5 will go cancel. It will be converted back to 18 kilometer per hour. This is how we transform the units of the speed. Okay. Then there is another term. First of all, we are doing actually the basics required for this topic. Average speed. What is meant by the average speed? Average speed means speed total distance traveled by total time taken. This way we can compute the average speed. So average speed can be written as, if we have to compute the in overall journey of any object or overall journey of anything जो मोशन में है, स्पीड इज नथिंग बट ए मोशन. इफ़ यू हैव टू कंप्यूट द एवरेज स्पीड, यानी कि कुछ डिस्टेंस हाई स्पीड पे ट्रैवल हुआ है, कुछ डिस्टेंस लो स्पीड पे ट्रैवल हुआ है, ओवरऑल एवरेज स्पीड कितनी होगी.
सो एवरेज स्पीड जो हम निकालते हैं, एवरेज स्पीड वी राइट इट एज VAV, कि एवरेज स्पीड, speed is denoted by V, distance is denoted by D, so we will write total distance by total time, total distance by total time. So total distance by total time will be used to compute the average speed. See, now to compute the average speed, we have basically or fundamentally we have two special cases. We have two special cases. Case number 1 and case number 2 are given here. When the distance is constant, यानी कि if you are traveling a distance or an object having some speed is traveling a distance, और वो जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, क्या है वो, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से पॉइंट बी तक आना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आना है, ठीक है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है कांस्टेंट है। इसमें वो क्या कर रहा है कि कुछ डिस्टेंस ये मान लीजिए एट सम स्पीड ट्रैवल कर रहा है और कुछ डिस्टेंस हम अदर ट्रैवल कर रहा है, यानी कि पहले इसने ए से सी तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया यूजिंग स्पीड एक्स, दैट कैन बी इन मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, वट एवर, एक्स यहाँ पर क्या है स्पीड है ना, और दूसरा जो है सी से बी तक ये गया एट द स्पीड ऑफ वाई। तो ओवरऑल जब डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये जो डिस्टेंस है ये क्या है कांस्टेंट है, और स्पीड क्या है एक्स और वाई, तो ओवरऑल जो इसकी एवरेज स्पीड होगी दैट विल बी गिवन बाय 2 टाइम्स एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, 2 टाइम्स एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, याद रखना है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस डिस्टेंस में कोई पोर्शन वो एट सम स्पीड ट्रैवल कर रहा है और कोई बाकी पोर्शन एट स्पीड वाई ट्रैवल कर रहा है, तो ओवरऑल एवरेज स्पीड विल बी 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब अगर क्या है कि अगर टाइम ही कांस्टेंट है, क्या है अब डिस्टेंस नहीं, अब टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो उस समय जो एवरेज स्पीड निकालते हैं हम वो दोनों का एवरेज निकालना है, एक्स और वाई का एवरेज, है ना, वेयर एक्स एंड वाई जो दिया है स्पीड्स एट विच द सेम टाइम वॉज स्पेंड इन ट्रैवलिंग, यानी कि आधे समय के लिए उसने एक्स स्पीड रखी और फिर आधे समय के लिए वाई स्पीड रखी, तो ओवरऑल इसकी एवरेज स्पीड बनेगी वी एवरेज बनेगी एक्स प्लस वाई बाई टू, एक्स प्लस वाई बाई टू, वेयर एक्स एंड वाई आर द डिफरेंट स्पीड्स, है ना। तो दीज आर द वेज टू कंप्यूट द एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड में हमने देखना है अगर डिस्टेंस कांस्टेंट दिया है तो फिर जो दो स्पीड है उनको क्या करना है 2x वाई अपॉन एक्स प्लस वन, बट इफ टाइम इज कांस्टेंट तो फिर एवरेज स्पीड विल बी सिंपली एक्स प्लस वाई बाई टू, वेयर एक्स एंड वाई आर एक्चुअली द स्पीड्स। ओके, उसके बाद बट अब क्या इश्यू है, अब एक और स्पेशल केस यहाँ पर है कि if the first part of a given distance is covered at a rate of v1 in time t1, देख लीजिए यहाँ दो पार्ट है डिस्टेंस की, a से b तक जाना है, एक पार्ट ना डिस्टेंस का यहाँ से यहाँ तक इसको लगा टाइम t1 और स्पीड थी इसकी v1, और जो इसका सेकंड पार्ट है c से b तक इसमें टाइम इसका लगा t2 बट स्पीड थी v2, है ना। तो इस समय एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर जो हम एवरेज स्पीड निकालेंगे देखो क्या है, एक्चुअली हम काम करेंगे, ये हमारे पास डिस्टेंस d1 है यहाँ तक, नाउ ये हमारे पास डिस्टेंस d2 है, बेसिक से यूज़ करेंगे हम, हमारे पास जो एवरेज स्पीड होगी वो क्या होती है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, लेकिन यहाँ डिस्टेंस टोटल कितना है d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है t1 प्लस t2, ठीक है। तो एवरेज कितना आएगा d1 कितना आएगा, देखो d1 तो अलग लगेगा इस रीजन में, इस पोर्शन के लिए ध्यान रखना, इस पोर्शन के लिए हम v1 t1 और d1 का रिलेशन देख लेंगे, तो v1 कितना आएगा d1 बाई t1, या d1 को कितना लिखोगे v1 इंटू t2, ये जो मैंने यहाँ एनसर्कल किया इसलिए अलग हम फार्मूला लगा सकते हैं, स्पीड किसके बराबर होती है डिस्टेंस बाई टाइम, तो यहाँ से d1 कितना मिलेगा आपको v1 t1, तो ये जो दूसरा रीजन आपका है इसमें आपके पास स्पीड क्या है v2 इज़ d2 बाई t2, तो यहाँ से आप d2 निकाल सकते हो v2 इंटू d2। तो इस वाले केस में अगर आपका एक पार्ट ऑफ डिस्टेंस है कवर हो रहा है v1 वेलोसिटी के साथ इन टाइम t1, और जो दूसरा पार्ट है डिस्टेंस का वो v2 वेलोसिटी के साथ इन टाइम t2 कवर हो रहा है, तो इस जर्नी में ओवरऑल एवरेज स्पीड कितनी आएगी, यानी कि यहाँ इस d1 को हम रिप्लेस करेंगे
V1 T1 है यहाँ पे, V1 T1 प्लस V2 T2 अपॉन T1 प्लस T2, ये याद रखिएगा। इस वाले केस के लिए एवरेज स्पीड हम ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, नाउ इफ द ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विद स्पीड V1 एंड बी इज मूविंग विद स्पीड V2, तो रिलेटिव स्पीड देखो, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बी है ना, इसकी स्पीड कोई है V1 और इसकी स्पीड है कोई V2। देखो ये डिपेंड करेगा इनका मूवमेंट कैसा है, ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अगर तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब जाके जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड वो हम देखेंगे रिलेटिव स्पीड ऑफ, अगर लिखना है ऐसे ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है स्पीड ऑफ बी माइनस स्पीड ऑफ ए। अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो क्या होती है, माइनस होती है, V2 माइनस V1, है समझ। लेकिन अगर ये सेम अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं देन रिलेटिव स्पीड क्या होती है, ओवरऑल ऐड होती है। आपने देखा होगा जब गाड़ियाँ एक दूसरे को ओवरटेक करती है तो वो तो सेम डायरेक्शन में होती है, तो ओवरटेकिंग के समय आपको लग रहा है ना स्लो हो गई जैसी गाड़ी की मोशन, वो इसलिए होता है बेसिकली दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जो उस समय रिलेटिव स्पीड बनती है वो उनका डिफरेंस होता है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आपको क्या महसूस होता है, स्पीड बढ़ रही है, बिकॉज जब बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी बढ़ेगी, ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। इफ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन देयर रिलेटिव स्पीड विल बी द डिफरेंस ऑफ द टू स्पीड्स, and similarly if they are moving in the opposite direction then the relative speed will be the addition of the individual speeds। अच्छा, कुछ few important points है और additional points है जो आपको देखने। पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट दिया है if the ratio of speed of object P and Q is P is to Q, यानी कि उनका स्पीड है P and Q के रेशियो में, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम यूज्ड बाय देम टू रीच द सेम डिस्टेंसेस, वो टाइम तो उल्टा होता है बिकॉज स्पीड एंड टाइम तो रेसिप्रोकल है, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट है, तो अगर स्पीड का रेशियो दिया है तो टाइम उसका उल्टा हो जाएगा, है ना। आसान भाषा में यहाँ दिया है अगर उनके स्पीड्स का रेशियो है P एंड Q और द ऑब्जेक्ट्स जिनकी स्पीड्स का रेशियो है P इज टू Q, तो टाइम जो उनको सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगेगा वो रेसिप्रोकल होगा, यानी कि रेशो फिर उल्टा हो जाएगा। देखो ऐसा क्यों होता है, बेसिकली वी नो दैट स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, यहाँ सेम डिस्टेंस है तो यहाँ क्या बनेगा, स्पीड बनेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसीलिए अगर उनका रेशो है स्पीड्स का P इज टू Q तो टाइम का ऑब्वियसली क्या बनेगा, फिर टाइम्स का रेशो बनेगा Q इज टू P। ये अगर स्पीड का रेशो है तो ये बनेगा फिर टाइम रेशो। ये एक टिपिकल पॉइंट है जो आप यूज़ कर सकते हो। आगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आने वाले इस चैप्टर में यूज़ होंगे। इफ़ टू इंडिविजुअल्स और ऑटोमोबाइल्स और ट्रेन्स, यानी कि कोई भी मूविंग बॉडी है, स्टार्ट्स एट एग्जैक्ट टाइम इन द अपोजिट डायरेक्शंस, गुड। मान लीजिए कोई फिक्स टाइम है, ये टाइम पे ना यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है, ये अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर रहे हैं, ए इस डायरेक्शन में और बी इस डायरेक्शन में, इतना दिया है, ठीक है। बोल रहे कि आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, क्रॉसिंग के समय लेट अस सपोज स्पीड तो उनकी अलग अलग होगी, ये कहीं पे आपस में क्रॉस कर लेंगे, यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर आपस में क्रॉस कर रहे हैं, ये इनका सी पॉइंट है, क्रॉसिंग पॉइंट है। बोल रहा है कि अगर क्रॉसिंग के बाद दे टेक ए एंड टाइम ए एंड बी टू फिनिश द जर्नी, यानी कि इस पॉइंट के बाद क्रॉसिंग के बाद इस ए को यहाँ तक टाइम ए लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन बाय ए इज इक्वल टू ए आवर हो सकता है, ए सेकेंड हो सकता है, और इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद बी को यहाँ तक डेस्टिनेशन तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन बाय बी इज लेट अस सपोज बी दिया है क्वेश्चन में, ऊपर लिखा है। फिर बता रहा है कि रिलेशन क्या बनेगी स्पीड के साथ, रिलेशन क्या बनेगी स्पीड के साथ, बिकॉज ए विल बी हैविंग सम स्पीड, बी विल बी हैविंग सम स्पीड, लेकिन ये जो टाइम दिए हैं क्रॉसिंग के बाद यहाँ कितना टाइम लग रहा है ए को डेस्टिनेशन तक पहुँचने में, वो ए है,
और यहाँ बी को सी को क्रॉस करने के बाद डेस्टिनेशन तक पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, बी टाइम बी। तो फिर एक रिलेशन आती है स्पीड ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ बी, जिसको आप लिखोगे वी ए बाई वी बी। इसका एक रिलेशन बनता है, स्क्वायर रूट लगाना है, क्रॉसिंग के बाद जो टाइमर्स है ना उनका उल्टा लेना है, यानी कि यहाँ स्पीड ऑफ ए है ना, यहाँ आएगा टाइम टेकन बाय बी टू रीच द डेस्टिनेशन आफ्टर क्रॉसिंग दिस पॉइंट डिवाइडेड बाय नीचे आएगा टाइम टेकन बाय ए आफ्टर क्रॉसिंग टू रीच द डेस्टिनेशन। गुड। सो ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत टिपिकल्ट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में रहेगा तो आप एक डिफ़िकल्ट से क्वेश्चन को ना सिंपल तरीके से ना यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन समझना है प्रॉब्लम क्या है। टाइम जो दिए है वो क्रॉसिंग के बाद डेस्टिनेशन तक पहुँचने में ए और बी है, इसलिए स्पीड के साथ इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन टाइम पे स्क्वायर रूट भी है। देखो इन्वर्स कैसे, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में स्पीड ऑफ ए है, यहाँ वो टाइम नीचे है, यहाँ डिनोमिनेटर में यहाँ न्यूमरेटर में, लेकिन ऊपर एक स्क्वायर रूट भी है। ओके। अच्छा, अब क्या क्या प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस बन सकते हैं। प्रॉब्लम्स मीन्स यहाँ क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। देखो दो टाइप की प्रॉब्लम्स जनरली स्पीड डिस्टेंस टाइम में एनकाउंटर होती है किसी भी एग्ज़ाम में, खासकर ये जो सिलेबस इशू किया है ये तो एसएससी सीजीएल के पैटर्न पे दिया गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पर वो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बनाया। एक होती है ट्रेन प्रॉब्लम, दूसरी होती है बोर्ड स्ट्रीम प्रॉब्लम। ट्रेन प्रॉब्लम में क्या है कि ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग विद सम speed, it's having some length, it is crossing some platform, it is crossing some pole, it is crossing some person। तो इसके बेस में जैसे भी whenever a train travels with some speed, इसकी अपनी कोई लेंथ है, तो क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, इट इज़ क्रॉसिंग ए प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म एक बड़ा होता है, वो एक नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट है। नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स दैट इज़ हैविंग सम लेंथ, लेकिन अगर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की कोई लेंथ नहीं होती है। जैसे पोल हो गया या एक पर्सन, स्टैंडिंग पर्सन है, उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स जिसकी अपनी कोई लेंथ नहीं है। इसलिए क्या होता है ट्रेन प्रॉब्लम्स में, जैसे भी आप देखोगे ट्रेन अगर किसी चीज़ को क्रॉस कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को, अगर ये नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे किसी और ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, तब जाके टोटल डिस्टेंस ये जो ट्रैवल करेगा, नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में ट्रेन का जो डिस्टेंस ये जो ट्रैवल करेगा, एक तो अपनी लेंथ होगी, एक तो लेंथ होगी अपनी लेंथ ऑफ ट्रेन, और प्लस वो जो नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ भी ऐड हो जाएगी, चाहे वो प्लेटफॉर्म हो चाहे वो दूसरी रेल हो। लेकिन अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, जैसे फिक्स्ड पोल हो गया, फिक्स्ड मैन हो गया, तब डिस्टेंस अपनी ही लेंथ हो जाएगी ट्रेन की। देन डिस्टेंस विल बी द लेंथ ऑफ ट्रेन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोट स्ट्रीम प्रॉब्लम्स होती है। बोट स्ट्रीम प्रॉब्लम में क्या है कि एक्चुअली जो बोट है दैट वो तो आप पानी में तैरती हैं या पानी में आप बोल सकते हैं ट्रैवल करती हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो वो अलोंग द स्ट्रीम जाएगी, लहर के साथ जाएगी, या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, या तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी। तो जब बोट अलोंग द स्ट्रीम ट्रैवल करेगी उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट क्या है, या डाउन स्ट्रीम टर्म का भी यूज़ की जाती है व्हेन द डायरेक्शन ऑफ बोट इज़ अलोंग द स्ट्रीम, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए पानी की लहर इस डायरेक्शन में है और बोट भी इसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर इसको आप बोल सकते हो दिस इज़ डाउन स्ट्रीम केस। यानी कि होता क्या है एक्चुअली, जो स्ट्रीम है, जो लहर है, वो सपोर्ट करती है किसको, या आप बोल सकते हो उसको सपोर्ट करेगी। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ये स्ट्रीम इस डायरेक्शन में है, बोट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। डायरेक्शन पे नहीं जाना है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्शन ऑफ बोट इज़ अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि इसको हम फिर बोलते हैं अप स्ट्रीम, यानी कि इसको अप स्ट्रीम करना है। फिर रिलेटिव का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, गलत करोगे। सिर्फ ध्यान रखना है इफ़ डायरेक्शन ऑफ बोट इज़ अलोंग द स्ट्रीम उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इफ़ डायरेक्शन ऑफ बोट इज़ अगेंस्ट द स्ट्रीम उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम। मान के चलते हैं यू आपने माना है, u किलोमीटर पर आवर स्पीड किसकी है, बोट की, इन सेटल वाटर।
सो अगर आप मानोगे u किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, पानी में बोट की स्पीड है। स्टिल वाटर मीन्स जिसमें कोई मोमेंट नहीं है, जो ठहरा हुआ पानी है। उसके बाद स्ट्रीम जो लहर है उसकी स्पीड है v किलोमीटर, अगर आप मानोगे ये है स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो क्या होता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड कैसे फिर हम निकालेंगे और अप स्ट्रीम कैसे निकालेंगे। डाउन स्ट्रीम स्पीड इन दोनों का ऐड करते हैं हम, तो u प्लस वी है ना, बिकॉज ये उसको सपोर्ट कर रहा है तो ओवरऑल स्पीड बढ़ जाएगी। अप स्ट्रीम में इसको सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए ओवरऑल स्पीड कम होती है। तो याद रखना है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम ऐड होती है और अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट होती है। ये कॉन्सेप्ट भी आपने याद रखना है। नाउ फ्यू क्वेश्चंस, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में हम और स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्या दिया है, 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन। ओके, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना दिया है यहाँ पर, 360 मीटर। रनिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, कोई यूनिफॉर्म स्पीड है, वी टी मीन स्पीड ऑफ ट्रेन जो कि पता नहीं है। क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 55 सेकेंड्स, यानी कि T1 लिखेंगे, इसको कितना टाइम लग रहा है, 55 सेकेंड है ना, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। एंड ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म इन 24 सेकेंड्स, T2, यानी कि T1 टाइम इसको लग रहा है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, T2 टाइम इसको लग रहा है एक पर्सन को क्रॉस करने में, उसमें इसको 24 सेकेंड्स लगते हैं। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द लेंथ इन मीटर्स और व्हाट, मुझे लगता हाँ प्लेटफॉर्म का दिया है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म का दिया है, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया है। देखो चूँकि यहाँ पर क्या होगी, ओवरऑल लेंथ ऐड होगी, है ना, बिकॉज प्लेटफॉर्म क्या है, नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसकी लेंथ होगी, वही हमने निकालना है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। लेकिन अगर आप देखोगे हम स्पीड ऑफ ट्रेन तो यहाँ से निकाल सकते हैं नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ही रहेगी, है ना, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू क्रॉस दिस पर्सन। बिकॉज यहाँ इस केस के लिए, इस टाइम के लिए हमें क्या देखना है, क्योंकि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है इसलिए इसका लेंथ आएगा नहीं, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये डिस्टेंस क्या आएगा, वो तो सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन होगी, तो वो क्या बनेगा, लेंथ ऑफ ट्रेन खुद है 360। अब लेंथ ऑफ मैन भी जोड़ती, लेकिन वो तो कुछ नहीं है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, 24। यहाँ से आपको वो यूनिफॉर्म स्पीड मिलेगी, यहाँ से आपको वो यूनिफॉर्म स्पीड मिल जाएगी। तो ये आपको कितना मिल रहा है, 15 मीटर में है और सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड है ना, 12 2 12 3, हाँ 15 मीटर पर सेकंड। देखो अब क्या करना है, अब नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए लगाएंगे, यही स्पीड किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइड बाई टाइम कितना लगा इसको क्रॉस करने में। अब तो स्पीड निकाली हुई है बिकॉज वो तो यूनिफॉर्म है, 15 मीटर पर सेकंड, लेंथ ऑफ ट्रेन है 360 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म हमने निकालना है, अपॉन टाइम T1 कितना लगता है इसको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, 55। तो आंसर कितना आएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हो, यू विल गेट 445 यू शुड गेट। इसको बस सॉल्व करना है, या अगर सीखना भी है, मैं एक चीज़ यहाँ पे सिखाने की कोशिश करूँगा। देखो 15 को मल्टीपल करना है 55 से, इज इक्वल टू 360 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो ये बनेगा 55 को लिखोगे 50 प्लस 5 इज इक्वल टू 360 प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। फर्दर देखो 15 को 50 से मल्टीपल करना तो 750, 5 को 15 से मल्टीपल करोगे तो 75 इज इक्वल टू 360 प्लस LP, तो आपका क्या बनेगा, ये बनेगा 825, ये हो जाएगा माइनस 360 इज इक्वल टू LP, तो यही आपका आंसर देगा 445। तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आएगा, 445 मीटर। गुड, तो जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए थे नॉन पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए और पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, वही यूज़ करना है। अच्छा, मोहित स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम प्लेस A एंड रीचेस प्लेस B इन 12 आवर्स। ठीक है, मोहित है, ये है A प्लेस और B तक इसने जाना है, इसको इसमें जो टाइम लग रहा है ओवरऑल 12 आवर्स लग रहे हैं, है ना। मोहित इस डायरेक्शन में जा रहा है। आगे क्या दिया है, ही कवर्स 1/5 पार्ट ऑफ द टोटल डिस्टेंस, यानी कि अगर x इसका टोटल डिस्टेंस है, इसका 1/5 मीन्स इसका 5वां हिस्सा, 5वां हिस्सा तो यहाँ तक आएगा C तक, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, 1/5 ऑफ x। कितनी स्पीड के साथ कर रहा है ये 1/5 वाला,
एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर कर रहे हैं। और बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस सी से बी तक बचा। अगर 1/5 चला गया तो बाकी डिस्टेंस कितनी बची, 4/5 पार्ट ऑफ एक्स। तो वो कर रहा है किस स्पीड के साथ, 8 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस। देखिए हमें जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, वो है, हमें पहले तो निकालना क्या है, हमें डिस्टेंस x निकालनी है, लेकिन यहाँ डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, और टाइम टोटल दिया हुआ है, तो अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को हमने कैसे अप्रोच करना है। देखो पहले ध्यान से देखना है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। सबसे पहले हमें देखना है एवरेज स्पीड कितनी रहेगी ओवरऑल इस जर्नी में, एवरेज स्पीड कितनी रहेगी इस जर्नी में। हमने तो इस क्वेश्चन को पहले क्या किया, हमने इसको ब्रेक किया 2 भागों में। डिस्टेंस जो था दैट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, One is 1/5 part of distance have been traveled at one speed and another part has been divided into the at another speed। पहले 6 किलोमीटर पर आवर है और बाकी कितना है, एट 8 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ओवरऑल टाइम जो लग रहा है वो कितना है, दैट इज़ 12 आवर्स। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। देखो हम देखेंगे पहले टोटल डिस्टेंस। पहले आपने क्या करना है, हम इस डिस्टेंस को निकालेंगे, उसके बाद इस डिस्टेंस को निकालेंगे, है ना। तो पहले हम इसके लिए अलग, इस पोर्शन के लिए अलग फार्मूला लगा सकते हैं। हमें पता है स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ स्पीड कितना दिया है, 6 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना दिया है, शाबाश, 1/5 ऑफ एक्स डिवाइड बाई टाइम कितना है वो पता ही नहीं, लेट अस सपोज T1 है। तो यहाँ से आप T1 निकाल सकते हो, वो कितना बनेगा 1/5 इंटू x/6। तो आपको ये टाइम T1 जो निकलेगा दैट विल बी x/30। तो x/30 क्या है, ये टाइम है A से C तक। आगे हम देखेंगे सिमिलरली इस वाले के लिए, अब जो ये जर्नी है C से लेकर B तक, तो इसके लिए भी सेम फार्मूला लगाएंगे। स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 8 किलोमीटर पर आवर दैट विल बी, डिस्टेंस कितना है 4/5x अपॉन टाइम कितना लग रहा है, लेट अस सपोज T2 है। तो यहाँ से T2 कितना बनेगा, 8 डिवाइड करेंगे तो वो बनेगा 1/10 ऑफ x, सर ये T1 का यूनिट क्या है, चूँकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो ये आवर हो जाएगा टाइम का, ये भी आवर हो जाएगा। अगर आप देखोगे ओवरऑल जर्नी में टाइम लग रहे हैं 12 आवर्स। ओवरऑल जर्नी में कितना टाइम लग रहा है, 12 आवर्स। क्या हम T1 प्लस T2 को 12 आवर लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। सो हियर T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 12 आवर्स। तो हम देख सकते हैं कि x/30 प्लस x/10 इज इक्वल टू 12। यहाँ पर x/10 लेफ्ट साइड में कॉमन आ गया, 1/3 प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 12। तो आपका x कितना आएगा, इंटू 4/30 इज इक्वल टू 12। तो आप देख सकते हो ये आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा 90 मीटर, सॉरी 90 किलोमीटर होना चाहिए, बिकॉज किलोमीटर पर आवर में, तो 90 किलोमीटर आपका आंसर बनेगा। इस क्वेश्चन को पहले सोचा समझा इसलिए सॉल्व किया, करने को तो बाद में फिर आप ये कुछ फ्यू सेकंड्स में भी कर सकते हो, लेकिन पूरा प्रॉपरली दिखना है कि आपका क्वेश्चन किस पैटर्न पे बना है, कौन सा रास्ता आपको इजी हो जाएगा। आपका समय भी बचना चाहिए और आपको आने वाले क्वेश्चन के लिए कुछ और कॉन्सेप्ट्स लर्न करने पड़ते हैं, है ना। तभी मैंने बोला था सक्सेस क्या है, डे इन डे आउट आपको लर्न करना, ये प्रोसेस है। अदरवाइज़ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे फटाफट, लेकिन सीख के कुछ नहीं जाओगे, वो प्रॉब्लम है। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें सीखना और फिर आगे आने वाले क्वेश्चन में अप्लाई करना, यही होती है एक स्ट्रैटेजी, स्मार्ट वे ऑफ स्टडी जिसको आप बोलते हो। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, 2 ट्रेन स्टार्ट एट सेम टाइम P फ्रॉम A एंड टू B एंड Q फ्रॉम B टू A
ऐसा है कि दो ट्रेनें हैं, एक पी ट्रेन है वो ए से निकल रही है और क्यू ट्रेन है वो कहाँ से निकल रही है, क्यू बी से निकल रही है। यहाँ से पी निकल रही है इस डायरेक्शन में, यहाँ से क्यू निकल रही है इस डायरेक्शन में अपोजिट। इफ़ दे अराइव एट बी एंड ए रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्यू यहाँ कितने समय के बाद पहुँच रहा है 2.5 आवर। इफ़ दे अराइव एट बी एंड ए रेस्पेक्टिवली 2.5 आवर्स एंड 10 आवर्स आफ्टर दे पासिंग ईच अदर, यानी कि क्रॉसिंग के बाद, पासड ईच अदर मीन्स क्रॉसिंग के बाद क्या हो रहा है, पासड के बाद क्या हो रहा है, पहले बी पे पहुंच रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचा, कौन पहुंच रहा है, ट्रेन पी। इसको कितना टाइम लग रहा है यहाँ, टाइम फॉर पी दैट इज़ 2.5 आवर, और इसको कितना टाइम लग रहा है ए तक पहुंचने में, वो दिया है 10 आवर, यानी कि क्रॉसिंग के बाद कितना टाइम लग रहा है, टाइम टेकन बाय ट्रेन क्यू दैट इज़ 10 आवर। ओके, यानी कि क्रॉसिंग के बाद वाला टाइम दिया है। तो आपको पता होना चाहिए, ये स्पीड पूछ रहा है ना आगे, द स्पीड ऑफ पी इज़ 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वी पी कितना दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, हमें क्यू का पूछ रहा है। तो आपको तुरंत याद आना चाहिए, अभी वो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा जहाँ पर हमें पता है क्रॉसिंग के बाद स्पीड और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि स्पीड ऑफ पी बाय स्पीड ऑफ क्यू क्रॉसिंग के बाद वाले टाइम्स का रेसिप्रोकल है, यानी कि टाइम टेकन बाय क्यू अपॉन टाइम टेकन बाय पी, इस पर क्या लगाना है, स्क्वायर रूट लगाना है। यही तो सीखा हमने। सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू, अगर 90 किलोमीटर पर आवर है ये, डिवाइडेड बाय वी ऑफ क्यू निकालना है, इज इक्वल टू रूट ऑफ टाइम टेकन बाय क्यू आफ्टर क्रॉसिंग है 10 डिवाइडेड बाय 2.5, ये आपका 4 आ गया, तो ओवरऑल रूट से निकल के वो कितना बनेगा, 2 निकलेगा, है ना, बिकॉज ये है ना 2.5 1 4, तो वहाँ 2 निकलेगा, अपॉन वी क्यू इज इक्वल टू 2, तो वी क्यू कितना मिलेगा, 2 से डिवाइड करना है तो 90/2 किलोमीटर पर आवर, दैट इज़ नथिंग बट 45 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू, 45 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस का जो कॉम्प्लेक्स नेचर है वो इंक्रीज़ होगा जैसे जैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 स्टेशंस पी एंड क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 570 किलोमीटर्स अपार्ट ऑल अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि 2 स्टेशंस हैं, ट्रेन स्टेशंस, इनका क्या है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, पी एंड क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है, पी एंड क्यू के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना दिया, 570 किलोमीटर्स। बता रहा है पी से जो ट्रेन निकलती है वो 5 AM में निकलती है सवेरे, एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स क्यू, और जा रही है इस डायरेक्शन में। आगे क्या दिया है, आगे दिया है क्यू जो निकलती है ये 6 AM पे निकलती है, यानी कि 1 घंटा लेटर निकलती है पी के बाद, और वो पी की ओर जा रही है। लेकिन इसका स्पीड कितना दिया है, स्पीड ऑफ ट्रेन पी दिया है 90 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ क्यू कितना दिया है 70 किलोमीटर पर आवर। हमें बता रहा है किस टाइम पे वो मीट करेंगे, यानी कि टाइम क्या होगा, टाइम ऐसे तो हम नहीं निकाल सकते क्वेश्चन से कि किस टाइम पे मिले, लेकिन ये हम निकाल सकते हैं कि कितने टाइम के बाद मिले। जब वो टाइम का बाद वाला मिलेगा फिर वो हम टाइम में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो 2 तरीके हैं, 2 तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं कि हम एज्यूम करेंगे कि ये निकलने के बाद, जब पी निकला उसके x आवर्स के बाद ये मिल रहे हैं, यानी कि पी जब निकला, बिकॉज पी और क्यू अलग अलग समय पे निकल रहे हैं ना, पी इज़ डिपार्टिंग एट 5 AM, क्यू इज़ डिपार्टिंग एट 6 AM, जो हम लेट करेंगे कितने आवर्स के बाद मिलेंगे। आवर ही क्यों एज्यूम करना, बिकॉज स्पीड में आवर दिया है, इसीलिए अगर हम मानेंगे कि दे मीट, लेट अस सपोज लेट दे मीट x आवर्स आफ्टर पी स्टार्ट्स, है ना, x आवर्स आफ्टर पी स्टार्ट्स। मुझे बताइए आप कि x आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कौन, पी।
तो p का जो डिस्टेंस ट्रेवल आएगा वो आएगा स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ये कितना x घंटे में ट्रैवल करेगा डिस्टेंस। स्पीड इसकी 90 है, टाइम कितना है x आवर है, तो 90x बनेगा, है ना। यहाँ से देखो q का क्या होगा, डिस्टेंस कितना q ट्रैवल करेगा, वो भी होगा स्पीड इनटू टाइम, वो भी हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। उसकी स्पीड है 70, लेकिन टाइम कितना है, वो x-1 होगा। -1 क्यों होगा, बिकॉज वो 6 बजे निकलता है। चूँकि हमने यहाँ स्टार्ट p से किया है, जो x आवर दिया है हमने, ये हमने बोला जब p स्टार्ट हुआ, p तो 5 बजे स्टार्ट हुआ, इसलिए उसका जो टाइम है वो x आवर रह गएगा। लेकिन क्यों तो 6 बजे स्टार्ट हो, उसका जो टाइम है वो x-1 हो जाएगा। मुझे बताइए जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगे, लेट अस सपोज ये इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है जो p ने ट्रैवल किया x घंटे में, ये डिस्टेंस है जो q ने ट्रैवल किया x-1 आवर में। लेकिन मिल तो जाएंगे, जब ये मिल जाएंगे तो ओवरऑल टोटल डिस्टेंस ट्रैवल होगा। इसका मतलब है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय p एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय q का एडिशन 570 हो जाएगा, वो टोटल डिस्टेंस माना जाएगा। तो 90x प्लस 70 इंटू x-1 विल बी 570। अब तो ये लीनियर इक्वेशन है तो सॉल्व तो कर सकते हैं। 90x प्लस 70x माइनस 70 इज इक्वल टू 570, तो ये हो जाएगा 160x इक्वल टू 640। सो x विल बी नथिंग बट 4 आवर, यानी कि 4 घंटे लगेंगे। तो टाइम कितना होगा, टाइम होगा 5 AM प्लस 4 आवर। 5 AM को 4 आवर ऐड करोगे तो 9 AM आ जाएगा, बिकॉज टाइम जो x हमने माना था वो a की स्टार्टिंग से माना, इसलिए 5 AM को ऐड किया। या उल्टा भी कर सकती हूँ, 6 AM को, क्योंकि 6 AM को फिर x-1 ऐड करना है, वो बनेगा 6 AM प्लस 3 आवर, वो भी तो 9 AM ही हो जाएगा, है ना। तो इसका एक अल्टरनेटिव अप्रोच भी है, वो आप अपनी जगह ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर मैसेज में लिखिएगा कि आपने वो दूसरा वाला अप्रोच कैसे किया। ओके, दैट्स ऑल इन दिस सेशन टुडे। इन दिस लेक्चर ब्रीफली हमने बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स किए, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जो टॉपिक है, इसके फंडामेंटल एंड टिपिकल पॉइंट्स हमने सीखे, एंड वी सॉल्व्ड फ्यू क्वेश्चंस आल्सो। आई होप you must have learned a lot from this lecture. Many more lectures will come on this topic, at least 2-3 lectures, wherein we are going to solve many more complex questions and expected questions to be asked in the upcoming examination. Please like, share and subscribe the channel Dream High Academy. Thank you.